will be praying for some families who are sick in their family. और हम कुछ परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस वक्त बीमार है। Our worship leader, Brother Satish Bhalerao, is admitted in the Ghati hospital. और हमारे वर्शिप लीडर जो ब्रदर सतीश भालेराव है घाटी हॉस्पिटल में एडमिट है He went through operation. और उनका एक ऑपरेशन हुआ है। So we will be praying for him that God may heal him and recover him. और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनको छुए और उनको चंगाई दे। Then our brother dear Garud, his daughter met with an accident. She is in the hospital. और हमारे भाई गरुड़ की लड़की प्रतीक्षा उनका एक्सीडेंट हुआ है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। Then one child, his name is Yash from Sunday school, Yash Sri Sundar. और यश श्री सुंदर के लिए प्रार्थना करेंगे, वो बच्चा भी बीमार है। He is also admitted in the hospital. और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। So we'll pray for this family that Lord may send the healing power in their family. और हम इन परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी चंगाई की सामर्थ्य इन परिवारों में As भेजे। a church, we need to pray for our people. और कलीसिया के नाते हमें इन परिवारों के लिए प्रार्थना करना We are चाहिए। facing so many problems. हम काफी समस्याओं से जाते There are हैं many people who are sitting in front of me. They must be facing some और problems. हमारे सामने काफी सारे लोग बैठे हैं जो समस्या में इस वक्त हो गए। We'll stand on our feet and we'll pray for this family that Lord heal them right now. आइए हम अपने स्थानों में खड़े हुए और इनके लिए सबके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको चंगाई दे। We'll open our mouth and we'll look unto Lord and we'll say, Lord, we want healing power to work in our church. आइए हम अपने मुख को खोले और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें चंगाई की सामर्थ इन परिवारों के लिए मांगे और उन्हें चंगाई दे। Hallelujah, 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 hallelujah. Holy Spirit of God, we praise your name, O Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship your name, O God. Hallelujah. Oh, Lord Jesus, we worship your name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We come through your throne, O Lord. हम आपके सिंहासन के करीब आते हैं And we pray for this family right now, और Father. हम सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। There is power in the name of Jesus. यीशु के नाम में सामर्थ है पिता। We pray for Satish Bhalerao, Father. हम भाई सतीश भालेराव के लिए प्रार्थना Touch करते him हैं। right now, God. आप इसी वक्त उसको छू लीजिए प्रभु Send जी। your healing power, oh Father. आपकी सामर्थ चंगाई की सामर्थ उसके लिए भेज We देते pray हैं प्रभु for brother sister Garud's daughter, oh Lord. जी। हम बहन प्रतीक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। Heal her in Jesus' name. यीशु के नाम से उसको चंगा करते We हैं। pray for Yash Sri Sundar, oh Lord. हम यश श्री सुंदर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु Heal जी। that child, oh Father. तो इसी वक्त प्रभु जी आप उसको चंगाई And we दीजिए। declare healing over these children of God, oh Father. वो प्रभु जी इन बच्चों को हम यीशु के नाम से चंगा घोषित करते हैं प्रभु जी। We believe that you have listened our prayer, oh God. हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता। In Jesus' name we ask this prayer. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। As we are sitting in the house of Lord, जबकि हम परमेश्वर के भवन में बैठे हुए from last Sunday we are learning that God have given us a kingdom. पिछले सप्ताह हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें एक राज्य दिया है। Hebrew chapter 12 and verse 28. इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 28वां पद में लिखा है। And in this word we see that God have gave the kingdom to the people. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को उसका राज्य दिया है And we are the part of his kingdom. और हम उसके राज्य के भागी है। And if we are the part of his kingdom, यदि हम उसके राज्य के भागी है we should worship and honor him. और हम उसकी आराधना करना चाहिए, उसको आदर देना We चाहिए। will read that word, हम उस पद को पढ़ेंगे what it says. ये वो क्या कहता है। Hebrew chapter 12 and verse 28. इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 28 पद। Now the word of God says that God have gave us the kingdom of God, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसका राज्य हमें दिया है which will never be shaken. और वो कभी हलेगा नहीं And we are his part. और हम उसके भागी है। We are the part of his kingdom. हम उसके भागी है। If we are the part of his kingdom, यदि हम उसके राज्य के भागी है we should worship our God. हमें अपने परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। And when we will worship and will serve him, यदि हम उसकी सेवा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, God will honor us. परमेश्वर हमारा आदर करेगा। As we are the part of his kingdom, जबकि हम उसके राज्य के भागी है we face many challenges because we are in the battlefield. और हम काफी समस्याओं का सामना करेंगे क्योंकि हम एक युद्ध में है। Just now we pray for several families. और अभी हमने कुछ परिवारों के लिए प्रार्थना की Now these families are struggling in their life. और ये परिवार कुछ समस्याओं से जा रहे हैं They are praying families.
और वो प्रार्थना करने वाले परिवार Still they है, are facing some problems. फिर भी वो समस्याओं में है। So all we are praying families, हम सब प्रार्थना करने वाले परिवार हैं, godly family. और परमेश्वर के भय में It रहने is वाले not परिवार if है। we are godly people and there will be no struggle in our life. और ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के भय में रहते फिर भी हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। Most of the time when we come to church, when we live a Christian life, we think there must be no problem in our life. काफी बार हम सोचते हैं जब हम परमेश्वर के भय में जीते हैं तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं But होगी, let me tell you, परंतु मुझे बताने if दीजिए, we are the part of His kingdom, यदि हम उसके राज्य के भागी है, we are in the warfare. हम एक युद्ध में है, And when we are in the warfare, और यदि हम एक युद्ध में है, every day we will face challenges. और प्रतिदिन हमें एक समस्या का सामना करना पड़ेगा, Satan will try to attack us. और शैतान हम पे हमला करने की कोशिश He will करेगा, disturb our mind. वो हमारे मन को बहलाएगा, He will bring challenges in our life. हमारे जीवन में समस्याओं को लेकर आएगा, Because we are in the warfare. क्योंकि हम एक युद्ध में है, Because He knew that we are in His kingdom. और क्योंकि वो जानता है कि हम उसके राज्य के भागी If है, we are in the kingdom part, यदि हम उसके राज्य के भागी He है, will disturb our mind. वो हमारे मन को बहलाएगा। Because the word of God says in Matthew chapter 11 and 12, it says that Satan is trying to attack on the kingdom of God. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 और 12 पद में लिखा है कि वो परमेश्वर के राज्य को नाश करना चाहता है, He is planning to attack on the people. और वो लोगों के जीवन के ऊपर अटैक करता है। But Luke chapter 12 and 32 says, परंतु लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 11 पद में लिखा do है, not be afraid, little flock, और छोटे झुंड घबराओ मत, for your Father has been pleased to give you the kingdom. परमेश्वर पिता को आनंद है कि उसने अपना राज्य तुम्हें दिया है। So today I want to encourage you. आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता God हूँ। is saying that we do not afraid for the situation. परमेश्वर कहता है कि तुम परिस्थितियों से घबराओ मत। And so today morning I want to encourage you. इस सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता When हूँ। Moses was ruling, when Moses was leading the people of God, आज जब मूसा लोगों की अगुवाई कर रहा they था, came near the Red Sea और जब वो लाल समुद्र के करीब आए and they were afraid. और वो काफी घबरा गए At थे, that time Moses is encouraging them that they should still. और मूसा उनको ढाढ़स दे रहा था कि उन्हें स्थिर बने रहना चाहिए, That they should be firm. और उन्हें दृढ़ बने रहना चाहिए। So last week we learned that when we face some challenges in our life, पिछले सप्ताह हमने देखा कि जब हम समस्याओं में जाते हैं, when we are saying we are the part of His kingdom, और हम कहते हैं कि हम उसके परिवार राज्य के भागी हैं, there will be problems in our life. हमारे जीवन में समस्याएं तो आएगी, Satan will try to disturb our mind. शैतान हमारे मन को बहलाएगा, And in that situation, और उन परिस्थितियों we में must be firm in Christ. हमें परमेश्वर में दृढ़ बने रहना We है, मस्ट be still in our life. हमें स्थिर बने रहना है, Because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, Isaiah chapter 33 and verse 22, यशायाह का किताब उसका 33वां अध्याय or 22 word, 22 पद में लिखा है, it says, for the Lord is our judge, और परमेश्वर हमारा न्यायाधीश है, the Lord is our lawgiver, और वो हमारा देने वाला the परमेश्वर है, Lord is our king. वो हमारा राजा है, It is He who will save us. और वो वही है जो हमें छुड़ाएगा। Now the word of God says He is our judge. वो वचन में लिखा है कि वो हमारा न्याय करने वाला है। When we face problems and situations in our life, आज जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, we start thinking negative things. हम नकारात्मक सोचने लगते हैं, Why this is happening in my life? क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो I रहा am so है, much faithful with Lord. और मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हूँ, We pray more. हम अधिक प्रार्थना करते हैं, Still the things go wrong. फिर भी घटनाएं विपरीत होती जाती है। But the word of God says in that situation we must be still. परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी परिस्थितियों में भी हमें स्थिर बने रहना है, We must be still and firm in हमें our faith. स्थिर और मजबूत बने रहना है। The word of God says He is our judge. वचन कहता है कि वो हमारा न्याय करने वाला He है, will judge rightly in our life. वो हमारे जीवन का अच्छी तरह से न्याय करेगा। The word says वचन में लिखा He है will save us. वो हमें बचाएगा, He will deliver us. वो हमें छुटकारा In दिलाएगा, whatever situation you are going through, और जिस किसी परिस्थिति से आप जा रहे हो He will deliver us. वो आपको छुड़ाएगा। And so in that situation, उस परिस्थिति में we just want to praise Him. हमें उसकी आराधना और स्तुति करनी है, We must glorify His name. हमें उसके नाम की महिमा We करनी need है, to thank God. हमें परमेश्वर का धन्यवाद Because देना He है, is the Lord who gives victory in our life. और वही परमेश्वर है जो हमारे जीवन में हमको विजय को देता है। And we saw the word of God in 1 Corinthians chapter 15 and verse 57 and 58. It says, but thanks be to God, He gave us victory to our Lord Jesus पहला Christ. कुरिन्थियों उसका
उसमें लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो कि उसने हमें विजय प्राप्त कराई है, He is the Lord who will give victory और वही परमेश्वर है जो हमें विजय देता है in every situation. और हर एक सिचुएशन में। Whatever problem you are facing in your life, और जो कुछ समस्याओं से आप जा रहे हो, He is the Lord who will give victory. और वही परमेश्वर है जो हमें विजय दिलाएगा। And so Paul himself experienced in his struggle और ऐसा ही पौलुस ने अपने जीवन में अनुभव किया, that he went through many situations. और वो काफी परिस्थितियों से गया, He went through persecution. वो सताव से गया, Many people stoned him, अब काफी लोगों ने उस पर पथराव किया, but still he was firm. और फिर भी वो स्थिर बने रहा, He never disturbed. वो कभी विचलित नहीं हुआ। And so he says, और इसलिए वो कहता but है, thanks be to God. और परमेश्वर का धन्यवाद करता Today, हूं। church, I want to encourage you. कलीसिया में आज आपको उत्साहित If करना you are चाहता facing some problem in your life, हूं। यदि आप अपने जीवन में कोई समस्याओं में if you are हैं, crying in your family, यदि आप अपने परिवार में रो रहे say हैं, to Lord, परमेश्वर से but कहिए, thanks to be God. और परमेश्वर धन्यवाद करता He हूं, will give you victory in your life. वो आपके जीवन में विजय को In देगा। every situation, हर एक परिस्थिति में we need to give glory unto Lord. हमें परमेश्वर को महिमा देनी We need है, to give thanks unto God. हमें परमेश्वर को धन्यवाद Because करना है, He is the Lord who will give victory in our life. क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमें विजय को देता है। And in that situation, और उस परिस्थिति में what He is saying, वो क्या कहता है, humble yourself, अपने आप को नम्र करो, therefore under mighty hand of God, और परमेश्वर के महान हाथों के नीचे आ जाओ, and He may lift you up in due time. और वो अपने योग्य समय में आपको उठाएगा, There will be time. और समय आएगा, Your time will come. आपका समय He आएगा, will lift you up. और वो आपको ऊंचा उठाएगा। Today you may be thinking, आप सोच सकते हैं there is no hope. आपके पास कोई आशा But नहीं, one day will come. एक दिन ऐसा आएगा, God will change the situation. और परमेश्वर सारी परिस्थितियों In को due बदल time, देगा, और अपने समय में He will lift you up. आपको ऊंचा But in उठाएगा। that situation, और उस परिस्थिति we में must be still. हमें स्थिर बने रहना है। In that situation, उस परिस्थिति we में must give all our worries unto Lord. हमें अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर सौंप देना है, And we must be firm in our life. और हमने जीवन में स्थिर बने रहना In है the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में। God have gave that kingdom और परमेश्वर ने वो राज्य को हमें that दिया will है, never be shaken. और वो कभी हिलेगा नहीं, Because this kingdom belongs to our Lord Jesus क्योंकि वो Christ. राज्य पर यीशु मसीह का है, He is our king. वो हमारा राजा है। Whatever things Satan will plan for us, और जो कुछ शैतान हमारे जीवन के विरोध में प्लान करता his है, plan will never success for our life. उसकी योजना हमारे जीवन में कभी पूरी नहीं So होगी। today morning I want to encourage you. इसलिए आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता We हूँ, must give ourselves to Jesus. हमें अपने आप को यीशु मसीह को सौंप देना है। So Moses is encouraging his people इसलिए मूसा अपने लोगों को उत्साहित that do कर not be afraid. कि घबराओ मत, Stand firm. और स्थिर बने रहो, You will see the deliverance of the और Lord. परमेश्वर के छुटकारे को आप देखने पाएंगे। Today you will have victory. आज आपको विजय प्राप्त होगी। So today morning इसलिए आज सुबह we must be still in our life. हमें अपने जीवन में स्थिर बने Second रहना। thing I want to share, और दूसरी बात जो मैं आपके साथ that बांटना चाहता resist your enemy. हूं, आपके शत्रुओं का प्रतिरोध कीजिए, Resist your enemy. आपके शत्रु का प्रतिरोध कीजिए। Our enemy is not a person. हमारा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं है, Our enemy is Satan. हमारा शत्रु शैतान है, Our battle is not among our people, और हमारी लड़ाई लोगों के बीच में नहीं but है, our battle is with a devil spirit. परंतु हमारी लड़ाई शैतानी शक्तियों के साथ Evil है, spirit which works in this world. और शैतानी शक्तियां इस संसार में कार्य करती है, And this evil spirit और हर एक शैतानी शक्ति brings many situations in our life. और हमारे जीवन में काफी समस्याओं को We लेकर आती face है, sickness in our life. वो हमारे जीवन में बीमारी को लेकर आती In है, our office, we face many challenges. हमारे ऑफिस में काफी समस्याओं से Most जाते of हैं, the time, we think that this person is my enemy. और काफी बार वो सोचते हैं कि ये मेरा शत्रु है, But let me tell you, that person is not your enemy. परंतु मुझे बताने दीजिए कि वो व्यक्ति आपका शत्रु नहीं है, Most of the time, Satan used that person to disturb us. और काफी बार शैतान उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है हमको विचलित करने के लिए, So we need to resist your enemy. और हमें अपने शत्रु का प्रतिकार करना है, We need to resist the devil. हमें शैतान का प्रतिरोध करना है। If you read the word of God, यदि हम वचन को पढ़ते हैं, James chapter 4 and verse 7, याकूब की किताब उसका 4था अध्याय, what it says, उसमें क्या लिखा है? what the word of God says, वचन में लिखा है, do not afraid your enemy, अपने शत्रु से मत डरो resist him. और उसका प्रतिरोध करो। The work of Satan, he tries to oppose us or afraid us. और शैतान का काम है कि हमें डराए और हमें घबराए। It is his
his work. वो उसका काम ही He है, will afraid us. वो हमें घबराएगा। And most of the time he works in our life in that way. और काफी बार इसी तरह से वो हमारे जीवन में कार्य करता है। He brings sickness. वो हमारे जीवन में बीमारी को He लेके आता brings है, financial crisis. वो हमारे जीवन में आर्थिक समस्याओं को And लेकर many आता है, things he brings in our life. और काफी बातें हमारे जीवन में लेकर Many आता है, challenges he brings in our life. काफी चुनौतियों को हमारे जीवन में लेकर And we आता get है afraid. और हम घबरा जाते हैं। But James says, परंतु याकूब कहता do है, not afraid your enemy. अपने शत्रु से ना डरो, Do not afraid your enemy. अपने शत्रु से मत डरो, Do not afraid your struggle. अपने परिस्थितियों से मत डरो, Do not afraid your sickness. अपने बीमारियों से मत डरो, Believe on God. और परमेश्वर पर भरोसा रखो, He will help us to वो- overcome in that situation. वो हमें उन सारी परिस्थितियों पे विजय प्राप्त करने के लिए सहायता He करेगा। says, resist your devil. और वो कहता है कि तुम शैतान का सामना करो, Resist your enemy. अपने शत्रु का सामना करो, Don't run away from your enemy. अपने शत्रु के सामने से भागिए मत, Face the challenge. आप चुनौतियों का सामना Because कीजिए, we are the part of his kingdom. क्योंकि हम उसके राज्य के भागी He हैं। will not disturb the people who are in the world. और वो जो लोग संसार में उनको डिस्टर्ब नहीं But करेगा, the people who are in the kingdom of God, परंतु जो लोग विश्वासी है उनको ही वो डिस्टर्ब करता the है। people who come to church, जो लोग कलीसिया में आते हैं, the people who serve the Lord, जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, he disturbs them. और वो उनको समस्याओं में लाता Now see है। our worship leader. और हमारा वर्शिप लीडर के हम देखते हैं, He is in the hospital. वो इस वक्त हॉस्पिटल में He है, is not in the church. वो इस वक्त कलीसिया में नहीं है, Such things he brings in our life. और ऐसी बातें वो हमारे जीवन में लेकर आता There are है। so many people facing such problems. और काफी सारे लोग इसी तरह की समस्याओं से जाते हैं, Such things happen in our life. और इसी तरह की बातें हमारे But the जीवन में word of होती God है। says, परंतु वचन में लिखा है, resist devil. आप शैतान का सामना करो, Resist your enemy. अपने शत्रुओं का सामना But करो। what Paul says, आप पौलुस क्या कहता है? 1 Corinthians chapter 16 and verse 13. आप पहले कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय और उसका 13वें पद में लिखा We'll है, read that word. हम उस पद को पढ़ेंगे। The word says, to be on your guard, stand firm in faith, be courageous, be strong. जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। In Marathi, it is very good word. Marda sarke vaga. Be courageous. और पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। Today morning, I want to encourage you. और इस सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, We must be courageous. हम एक धैर्यवान बनना We चाहिए, must not disturb. हमें विचलित नहीं होना है, Because Jesus is there with us. क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। Well, Jesus was in this world जब यीशु मसीह संसार में and he थे was traveling with his disciples. और वो जब अपने चेलों के साथ यात्रा कर रहे थे, At that time, he told that we'll go overcome from this sea. और वो कह रहे थे कि हम इस समुद्र को पार करेंगे, And at that time, they were traveling. और वो यात्रा कर रहे थे, Suddenly, there was a big storm. और एक अचानक एक बड़ा तूफान आया All disciples get disturbed. और सारे चेले विचलित हो And they गए were thinking that we'll die. और वो सोचने लगे कि हम मर जाएंगे, Crying. और सभी लोग रोने लगे। And at that situation, Jesus is sleeping. और उस परिस्थिति में यीशु मसीह शांत रीति से सो रहे थे, At that time, they woke up Jesus. और उस परिस्थिति में उन लोगों ने यीशु मसीह को उठाया He stopped the storm. और यीशु मसीह ने उस तूफान को थमाया And he told them, where is your faith? और उनको कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Do not you believe on me that I told that we'll overcome on this क्या तुम sea. मुझ पे विश्वास नहीं करते कि मैंने कहा कि मैं इस समुद्र को थाम दूंगा? Most of the time, Jesus is there in our family, काफी बार यीशु मसीह हमारे परिवार में ही होते in हैं, our struggle. हमारे समस्याओं में होते But we हैं, get disturbed that we do not believe that Jesus is there with us. और हम विचलित हो जाते हैं, हम विश्वास छोड़ देते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है। But the word of God says, परंतु वचन में लिखा be है, on your guard, वो अपने विश्वास में स्थिर stand रहो firm in faith, और विश्वास में स्थिर रहो, be courageous and be strong. पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। Church, we need to be strong in our life. कलीसिया में अपने विश्वास में स्थिर बनना We है। need to believe that we are serving that God who is the creator of this world. हमें वही विश्वास करना है कि हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने संसार को बनाया। So today morning I want to encourage you. इसलिए मैं आपको उत्साहित करना If चाहता we हूँ, are the part of his kingdom, यदि हम उसके राज्य के भागी the हैं, kingdom of God will be never shaken. परमेश्वर का राज्य कभी हिलेगा If नहीं। we are serving him, यदि हम उसकी सेवा करते he हैं, will help us in every situation. वो हर एक परिस्थिति में हमारी सहायता If we करेगा। read Old Testament, we see there were people who went through many situations. यदि हम पुराने नियम को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं लोग काफी समस्याओं से गए, But at that time, God encouraged them that they should not fear. परमेश्वर ने उनको उत्साहित किया कि वो डरे नहीं, They should not fear for the enemy. वो अपने शत्रुओं से ना डरे। We will see first example, that is Gideon. और हम गिदोन के बारे में देखते हैं, Judges chapter 6. और न्याय का किताब उसके 6ठे अध्याय में हम And in देखेंगे, this chapter we see that Midianites
were troubling these people. और हम देखते हैं कि बिन्यामीन लोग जो थे वो इजराइलियों को सता रहे थे। And the word of God says, और वचन में लिखा है chapter 6 and verse 6, छठे अध्याय का छठे पद में लिखा है, the Midians so overpraised the Israelite that they cried out to the Lord for help. और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। When they were in trouble, they cry unto God. जब वो समस्या में थे तो उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। And at that time, what happened? और उस समय क्या हुआ? The word says, वचन में लिखा है, when they cry unto God, God listened their prayer. जब इस्राएल ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने उनकी दुहाई को सुना। At that time, God sent an angel to Gideon. गिदोन के पास परमेश्वर ने एक दूत को भेजा। And the word of God says, वचन में लिखा है, 11 word says, the angel of the Lord came and sat under the oak in Ophrah that belonged to Josh and Abi-Zereth. और फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में एबीएजेर योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं के लिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छुपा रखे। And suddenly the angel came toward Gideon and saying that the Lord is with you, mighty warrior. और यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। Here we see angel is saying that you are the warrior. और यहाँ देखते हैं कि दूत कह रहा है कि तुम एक शूरवीर हो, And you should go and fight with your enemy. और तुम्हें जाकर शत्रुओं का सामना करना है। The angel is saying that you are the warrior. और दूत कह रहा है कि तुम एक शूरवीर हो। But he was thinking that I am not a warrior. और वो सोच रहा है कि मैं कोई शूरवीर नहीं He हूँ। was afraid about his enemy. वो अपने शत्रु से डरा हुआ था। Today morning the warriors are sitting in front of me. और हम देखते हैं कि हमारे सामने आज काफी शूरवीर बैठे We हैं। are Gideon. हम सब गिदियन हैं। Satan brings many problems in our life. शैतान हमारे जीवन में समस्या को लेकर But आता our है, warriors are afraid about our enemy. और हम शूरवीर होकर भी अपने शत्रु से डरते Now हैं। in this chapter we see that angel is encouraging that you are the warrior and you are going to have victory over your enemy. और यहाँ दूत उससे कह रहा है कि तुम एक शूरवीर हो और तुम अपने शत्रु पर विजय को प्राप्त करोगे। And if we read this story, यदि हम इस भाग को पढ़ेंगे, God removed fear from the life of Gideon. और परमेश्वर ने गिदोन के जीवन से भय को निकाल दिया। And we see that in a miraculous way God helped Gideon and he got victory over his enemy. और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसकी सहायता की और उसने अपने शत्रुओं पर विजय को प्राप्त किया। If we go and read this chapter, you will be blessed. We are not having that much time. और यदि हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप आशीर्वादित होंगे। Here the word of God says, God encouraged him that you are the mighty warrior. और ये परमेश्वर उसको उत्साहित कर रहा है कि तुम एक महान शूरवीर हो। Today morning I want to encourage you. और आज सुबह मैं आपको उत्साहित You करना चाहता are हूँ। not an ordinary people. आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं You है, are the powerful people of God. आप परमेश्वर के सामर्थी जन हैं। God have choose you in the kingdom of God. परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए आपको चुना There है। are so many people in the world, और इस संसार में काफी but सारे they लोग are हैं, not chosen. You are chosen for the kingdom of God. परंतु परमेश्वर ने उनको नहीं चुना, परंतु आपको चुना उसके राज्य And के if लिए। you are the part of the kingdom of God, यदि आप उसके राज्य के भागी you हैं, will face many challenges. आप काफी समस्याओं से But जाएंगे। let me tell you, परंतु मुझे बताने दीजिए, resist your enemy. अपने शत्रु का सामना कीजिए, Resist your enemy. अपने शत्रुओं का सामना And he कीजिए, will help you in every situation. तो परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति में सहायता करेगा। Second example we are going to see. और दूसरा उदाहरण जो हम That देखें, is King David. और दाऊद के बारे में, If we turn our Bible to the book of 1 Samuel chapter 17, पहला शमूएल का किताब उसका 17वें अध्याय को यदि हम देखते this हैं, is the story of David and Goliath. और ये दाऊद और गोलियत के बारे में है। And here the story says that when people of Israel went to have a battle with Palestinians, और जब फलिस्ती लोगों के साथ इजराइल लोग लड़ाई करने के लिए the गए, word of God says, chapter 17 and verse 1 says, और 17वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, the word says, now the Palestinians gathered their force for war and assembled at the Sukkot in Judah. और अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेको के बीच एपेदेमिस में डेरे डाले। And the word of God says they had battle with Palestinians. और वो वचन में लिखा है कि वो फलिस्तियों के साथ उन्होंने युद्ध किया। Then when we read 8 words says, Goliath stood and shouted to the ranks of Israel. और 8वें पद को हम पढ़ेंगे, वह खड़ा होकर इजराइलियों पतियों को ललकार के बोला, why do you come out and line up for battle? तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? I am not a Palestine, and are you not the servant of Saul?
क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? Choose a man and have him come down to me. अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। If he is able to fight and kill me, will come your subjects. But if I overcome him and kill him, you will become our subject and serve us. यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। Now when we read this chapter, it says that Goliath was a strong man. यदि हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो देखते हैं गोलियत जो था काफी बलवान He व्यक्ति is था challenging his people, Israel people, that they should come and fight with him. और वो इजराइलियों को चुनौती दे रहा था कि उसके साथ आकर लड़े। And he's saying, if I kill them, you will be our servant. और वो कह रहा था कि यदि मैं तुमको मार डालूं तो तुम मेरे सेवक बनोगे। And he is challenging the people of God. और वो परमेश्वर के लोगों को चुनौती दे रहा था। If we read word 11, यदि हम 11वें पद को पढ़ेंगे, it says, on hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. और उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजराइलियों का मन कच्चा हो गया। The word says he was challenging them. और वचन में लिखा है कि वो उनको चुनौती दे रहा था। The word says the people of God were afraid. और वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोग भयभीत हो The गए chosen people were afraid. और चुने हुए लोग भय से भर To गए। whom? Goliath. और किससे? गोलियात से। Chosen people get afraid. और चुने हुए लोग डर गए। Most of the people who pray, they afraid. और काफी लोग जो प्रार्थना करते हैं वो भी डर जाते हैं। The people who read the word of God, they afraid. और जो लोग वचन को पढ़ते हैं वो भी डर जाते The हैं। people who say, I got a promise from God, और जो लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ they है, get afraid. वो भी डर जाते हैं। Here the word of God says, यहाँ वचन में लिखा the है chosen people were afraid. और चुने हुए लोग भी भयभीत हो गए And they were afraid about Goliath. और वो गोलियात से डर गए। And what happened? Word 24. और 24वें पद में क्या लिखा है हम We'll देखेंगे। read that word. Whenever the Israelites saw the man, they all fled from him and in great fear. उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। Whenever they saw Goliath, they would get afraid. और जो कभी वो गोलियत को देखते थे वो डर जाते Most थे। of the time, we also get afraid for the situation we face. और काफी बार हम भी डर जाते जब उस परिस्थिति का सामना करते हैं। Here they were getting afraid about Goliath. और वो लोग भी गोलियात से डर गए थे। And while this was going on, और जब ये सब बातें हो रही थी, word 26 says, और 26वें पद में लिखा है, there arrived David. तब दाऊद वहां आया And David asked the man standing near him, अपने आसपास के लोगों से पूछने लगा, what will be done for the man who kills the Philistines and remove his disgrace from Israel? जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों को नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि वह जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? Here a small boy came in front. और जो एक छोटा लड़का सामने आया, Whole army is afraid for Goliath. और पूरी सेना गोलियत से डरी हुई But थी, small boy, परंतु एक छोटा लड़का, he is ready to resist his enemy. और वो अपने शत्रु का सामना करने के लिए तैयार था। Church, we need to be like David. हमें कलीसिया, हमें दाऊद के समान बनना है। Whatever problem you are facing in your family, और जो कुछ समस्याओं से आप जा रहे हैं, whatever challenges you are facing in your family, और अपने परिवार में जो कुछ समस्याओं से आप जा whatever रहे हैं, challenges you are facing in your personal life, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जो समस्याओं से जा रहे हैं, it must be hard for you. ये हो सकता है आपके लिए कठिन हो। It must be like Goliath in front of me, in front of you. हो सकता है एक गोलियत के समान हो आपके सम्मुख, But be like David and come forward to fight against your Goliath. परंतु हमें दाऊद के समान बनना है कि हम गोलियत का सामना करें। Here David is coming यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो सामने आया and he is ready to fight with him. और वो गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। 32 word says, और 32वें वचन में लिखा David है, said to Saul, और दाऊद ने शाऊल को कहा, let no one lose heart on account of these Philistines. Your servant will go and fight him. किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। Now king is afraid. और राजा डरा हुआ But है, the small boy is not afraid. परंतु एक छोटा लड़का डरा He नहीं, is ready to fight. वो लड़ने के लिए तैयार He say, था। I will go and fight. उसने कहा कि मैं जाके Don't लड़ूंगा worry about anything, king. और किसी बात की चिंता ना करो, I will go and fight. मैं जाकर लड़ूंगा। And in this chapter, he gave his personal experience. और हम देखते हैं कि उसने अपना व्यक्तिगत उदाहरण उसने दिया, अनुभव उसने बताया। Told his personal experience how God helped him in his critical situation. उसने बताया कि किस तरह परमेश्वर ने उस
कठिन समय में उसकी सहायता while की। he was looking after the flock. जब वो एक छोटे झुंड को देख रहा था, If God can help in my critical situation, जब परमेश्वर एक छोटी परिस्थिति में मेरा सहायता कर सकता he है, believed that God can help in this situation also. और उसका विश्वास था कि इस परिस्थिति में भी परमेश्वर मेरी सहायता And करेगा। by faith, और विश्वास के द्वारा, by faith he come forward. और विश्वास के द्वारा वो सामने आया। And if we read 44 word, यदि हम 44 पद को the पढ़ेंगे, word says, तो वचन में लिखा है, come here, he said, और उसने कहा, come here, he said, and I will give your flesh to the birds and the wild animals. मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दे दूंगा। David said to the Philistines, और दाऊद ने पलिश्ती से कहा, you come against me with sword and spear, javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty. और दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता The हूँ, God of armies of Israel whom I have defied. जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। This day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut off your head. This very day I will give you curses of the Palestinian army to the birds of the wild animals, and the whole world will know that there is God in Israel. वो आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। What a courage God gave to David. और कैसा धैर्य जो परमेश्वर ने दाऊद को दिया। In Marathi we say marda sarke vaga. और मराठी में लिखा है कि मर्दा सारखे वागा। Today we need to do like that. We need to stand against our enemy like marda sarke. और हमें भी एक मर्द के समान अपने शत्रु का सामना करना We चाहिए। need to resist the devil. हमें शैतान का सामना करना चाहिए। We need to face the challenge. हमें समस्याओं का सामना करना Here चाहिए। the word of God says, और यहाँ वचन में लिखा है, resist the devil और शैतान का सामना and he will करो, run away from you. और वो आपके सामने से भाग Are you जाएगा। facing any challenge in your life? क्या आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना We करें? are the part of his kingdom. हम उसके राज्य के भागी The हैं। word says, और वचन में लिखा है, therefore since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, और हम उस राज्य के भागी हैं जो कभी हिलने का नहीं, let us be thankful. और धन्यवादित बने रहो। We will give thanks to the Lord हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना that we चाहिए are the part of his kingdom. कि हम उसके राज्य के भागी हैं। What amazing God we serve. और कितने अद्भुत राजा की हम सेवा What a करते हैं, blessed people we are. और कितने आशीषित लोग हैं हम। We are the part of his kingdom. हम उसके राज्य के भागी Why हैं। not we can stand and say to Lord, Lord, I want to thank you. क्यों नहीं हम अपने स्थानों में खड़े हो उसे कहे कि मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद I देता want हूँ, to thank you, Lord, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ that I प्रभु am the part of your kingdom. कि मैं आपके राज्य का भागी हूँ, I- राज्य का भागी As हूँ। I am the part of kingdom, जब कि मैं आपके राज्य का भागी हूँ my प्रभु, enemy is torturing me. मेरा शत्रु मुझे सता रहा है, My enemy is bringing many crises in my life. और मेरा शत्रु मेरे जीवन में काफी सारी समस्याओं को My लेकर आ रहा enemy है, is bringing sickness in my life. मेरा शत्रु मेरे जीवन में बीमारियों को लेकर But आ रहा है, I know that you are my king. परंतु मैं जानता हूँ कि तू मेरा राजा है, In whatever situation I am facing, O और Lord, जो कुछ परिस्थिति से मैं जा रहा I हूँ will stand firm. मैं स्थिर बना रहूंगा, I will face the situation और मैं समस्याओं का सामना करूंगा, and I will resist the devil. और मैं शैतान का सामना I will करूंगा, resist my enemy. और मैं अपने शत्रुओं का सामना I will be करूंगा, like David. और मैं दाऊद के समान बनूंगा, I will face my challenge. मैं अपने शैतान का सामना I will करूंगा, face my debt. और मैं अपने कर्ज का सामना I करूंगा, will face my curse. और मैं अपने श्राप का सामना करूंगा, I will face my sickness. मैं अपने बीमारियों का सामना करूंगा, I will face every situations will come in my life. और हर एक परिस्थिति का सामना करूंगा जो मेरे जीवन में आती Church, है। Lord Jesus, we commit my life in your hand. प्रभु जी मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। Church, as we are standing in the presence of God, कलीसिया जबकि हम उसकी उपस्थिति में we हैं, will honor Jesus. हम उसकी महिमा करेंगे, उसको We महिमा will say, देंगे, Lord, I want to serve you. और उससे कहे कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, I want to give thank you, Lord. मैं आपको धन्यवाद देना चाहता Thank हूँ। you, Jesus. थैंक यू जीसस। So whatever
situation I am going through, जिस किसी परिस्थिति में से I जा रहा believe हूँ, that you are going to judge me right, oh Father. और मैं विश्वास करता हूँ कि तुम्हें सही रीति से मेरा Come on, न्याय church, करेगा। open your mouth and start praying unto God. आइए कलीसिया हम उसकी उपासना और आराधना The करेंगे। healing power is working right now. और चंगाई की सामर्थ इसी वक्त काम कर The रही है। deliverance power is working right now. और छुटकारे की आत्मा इसी वक्त काम कर And रही I है। believe the hand of the Lord is coming upon your family. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का हाथ हमारे परिवार के ऊपर है। You may be crying in your life. हो सकता है आप अपने जीवन में रो रहे हो। That is my Lord who is wiping your tears. वो परमेश्वर आपके आंसुओं को That is पोंछेगा। Lord who is wiping your tears. और वो परमेश्वर है जो आपके आंसुओं को पोंछेगा। Cry unto God. उसके सामने उसको पुकारे। हालेलुया। तुझ पर होगा ना सफल, Yes, Lord. Amen, Lord Jesus. तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर वो है तेरा केवनहारा है भरोसा तेरा किधर है तेरा केवनहारा है भरोसा तेरा किधर गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे हालेलुया अपनी बाहों में लिए हुए Jesus, thank you for this wonderful time of worship, O Lord. धन्यवाद करते इस अद्भुत आराधना के समय के लिए You have come and blessed us, O Lord, प्रभु जी आपने आकर हमें आशीषित with किया your powerful word, O God. प्रभु जी आपके सामर्थी वचनों के द्वारा We are the part of your kingdom, O God. हम आपके राज्य के भागी हैं As प्रभु we जी। are part of your kingdom, we want to thank you for that, O वो Father. जबकि हम आपके इस राज्य के भागी हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद As देते we हैं are serving you, O God, जब हम आपकी सेवा करते हैं प्रभु when जी, we face challenges, जब हम समस्याओं में जाते हैं crisis, वो जब हम कठिन परिस्थिति में जाते हैं Father Lord, we will be still in that situation. प्रभु जी हमें ऐसा बनाए कि हम उस परिस्थिति में स्थिर बने We will रहें not be afraid for the situation we face. वो जिस परिस्थिति का सामना करते हैं उससे हम डरे नहीं And Lord Jesus, प्रभु यीशु we will resist the enemy. हम शैतान का सामना करने वाले We will बने not run away from our enemy और हम अपने शत्रुओं से भागे नहीं because he is a defeater, O Father. क्योंकि वो हारा हुआ है You are a victorious Lord. वो आप विजयवंत प्रभु है And so today morning we declare victory in our life. और आज सुबह हम उसी विजय को हमारे जीवन में घोषित We करते give हैं our life
into your hand, O हम Father. अपने जीवन को आपके हाथों में We सौंपते commit our church unto you, वो Lord. हम अपनी कलीसिया को आपके हाथों में Bless सौंपते each and every one, O हर God. एक को आप आशीषित कीजिए Whatever problems they are facing, O वो God. जो कुछ समस्याओं से वो If जा there रहे are हैं any problems, if there are any sick, O fathers, heal them right now, यदि कोई Father. समस्या में कोई बीमार है उसे इसी वक्त चंगा करते Let हैं your power work into their life. होने दीजिए आपकी सामत उनके जीवन में कार्य करने Give their पाए life into your hand. हम उनके जीवन को आपके We हाथों में thank Lord for wonderful rain you have given for Maharashtra, O हम Lord. धन्यवाद करते हैं कि अच्छी बारिश आपने महाराष्ट्र में You have दी। listened our prayer, O आपने God. हमारी प्रार्थनाओं को सुना Thank you for this great blessing, O Father. धन्यवाद करते हैं आपके महान आशीष के लिए We commit our life into your hand. वो हम अपने आप को आपके As हाथों your में people सौंपते are going, be with them, O Lord. हैं। जब लोग अपने घरों को जाते हैं उनकी सहायता और सुरक्षा Protect them, करना O Father. उनकी सुरक्षा करना प्रभु In Jesus' name we ask this prayer. और यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता Amen. Amen. Say the